فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو تم کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آزمائشیں لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صبر و رضا کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے آگ کے اندر چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو سرد فرما دیا۔ 40 دن تک آگ میں رہے، 80 سال کی عمر شریف ہے، کوئی اولاد نہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے ایک نیک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ کم و بیش 9 مہینے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ ماں نے اپنے نور نظر لخت جگر کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت سارہ نے دیکھا رشک پیدا ہو گیا، کاش اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا کر دیتا۔ رشک پیدا ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کہیں جنگل میں چھوڑ کے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام شش و پنج میں ڈوب گئے، سوچ غور و فکر کرنے لگتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر آپ کی بیوی نے کہا حضرت سارہ نے کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو کہیں جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار، اے مالک و مولا، سارہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو کہیں جنگل میں چھوڑاؤں، اپنی بیوی ہاجرہ کو کہیں چھوڑ کے آؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، جو سارہ کہہ رہی ہیں وہی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، تم اور تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت میں چلنا ہے۔ حضرت ہاجرہ تیار ہو گئیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کر لیا، مختصر سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی لیا، لے کر کے ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مقدس باپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو لیا، جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ ایک ایسا لکودک صحرا جہاں دور دور تک آبادی نہیں، ایک ویران جنگل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑتے ہیں۔ چھوڑ کے جب چلنے لگتے ہیں، حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہے میرے شوہر، آپ اپنے لخت جگر اور مجھ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو جواب دیجئے، اپنے لخت جگر اور مجھ کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک لکودک صحرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہے میرے شوہر، کیا تمہیں رب نے حکم دیا ہے یہاں مجھے ٹھہرانے کے لیے؟ یہاں چھوڑنے کا حکم کیا تمہیں رب نے دیا ہے؟
इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ अल्लाह का हुक्म है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं। तो हजरत हाजरा ने फरमाया था ऐ मेरे शोहरा परेशान ना हो, जिस रब ने मुझे यहाँ ठहराने का हुक्म दिया है वो रब मुझे जाय नहीं फरमाएगा बल्कि मुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। ऐ इब्राहिम सुन लो, जब परवरदिगार आलम मुझे 80 साल की उम्र में मुझे बेटा अता कर सकता है, वो इस लको तक सहरा में मुझे खाना भी दे सकता है, पीने के लिए पानी भी अता कर सकता है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चल दिए, पीछे मुड़ मुड़ के लख्त जिगर को देख रहे। इस्लामी भाइयों, सीने पे हाथ रख के जरा सोचिए, आपका एक बेटा हो, आप उसे कैसे जंगल में छोड़ देंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपने बेटे इस्माइल को, अपनी बीवी हाजरा को छोड़ के जा रहे हैं। चंद दिन गुजरे, पानी खत्म, खजूरें खत्म, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छातियों का दूध भी खुश्क हो गया। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के माँ ने जब होठों को देखा तो होठ खुश्क हो गए, होठ सूख गए। माँ से देखा ना गया, माँ की ममता तड़प जाती है। सोचती हैं तो ये वीरान जंगल है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। दूर दूर तक पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आता है। एक करीब में पहाड़ी थी, जिस पहाड़ी का नाम सफा है। उस पहाड़ी पे चढ़ती हैं, चारों तरफ नजर डालती हैं, लेकिन कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता है। दौड़ती हुई मरबा पहाड़ी पे जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं, तरफ जवानी में नजर डालती हैं, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा पहाड़ी से मरबा पे जाती हैं, मरबा पहाड़ी से सफा पहाड़ी पर जाती हैं। एक दो चक्कर नहीं बल्कि 7 चक्कर लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत हाजरा का ये दौड़ना इतना पसंद आ जाता है, इतना पसंद आ जाता है कि कयामत तक हाजियों पर वाजिब कर दिया है कि वो भी सफा मरवा के दरमियान 7-7 चक्कर लगाएं। सुभान अल्लाह। 7 चक्कर पूरे हो गए। हजरत हाजरा ने देखा जहां पर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लिटाया था वहां पर परिंदे मंडरा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। जब मां ने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदे माजिदा हजरत हाजरा ने दिल में ख्याल किया कि परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे मंडरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई परिंदा मेरे लख्ते जिगर को कोई अजियत पहुंचा दे, कोई परिंदा मेरे नूर नजर को तकलीफ पहुंचा दे। दौड़ती हुई आई, क्या देखती हैं जहां पर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ियां है वहां से पानी का चश्मा निकल पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी का चश्मा निकल पड़ा। मेरे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाइए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जहां पे एड़ी रगड़ देते हैं वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदे माजिदा ने पानी पिया, अपने लख्ते जिगर को पानी पिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उस पानी के इर्द गिर्द मिडेर बनाती हैं और कहती हैं अलमाओ ज़मज़म, अलमाओ ज़मज़म, ऐ पानी ठहर ठहर, ऐ पानी ठहर ठहर। किताबों में लिखा है कि अगर हजरत हाजरा अलमाओ ज़मज़म ना कहती हैं तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कदम कदम पर आजमाइशें ली। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी बीबी और बच्चे को भी छोड़ दिया। ऐसा जंगल दूर दूर तक आबादी नहीं है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी के चश्मा के करीब बैठी हुई थी, जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। एक काफिले वाले का गुजर हुआ, काफिले वालों ने देखा कि परिंदे चहचहा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे पानी का चश्मा हो। काफिले वाले जब करीब गए तो क्या देखते हैं, एक औरत है, उसकी गोद में एक बच्चा है। काफिले वाले दंग रह गए। आवाज आती, काफिले वालों ये औरत जो है ये कोई आम नहीं है, इसकी गोद में जो बच्चा ये भी कोई आम नहीं है, ये पैगंबर की बीवी है, ये पैगंबर का बेटा है। काफिले वाले हजरत हाजरा के करीब गए। जाने के बाद कहते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम यहीं पर ठहर जाए।
حضرت हाजरा ने इजाजत को दे दिया, वो वहीं पर ठहर जाते. क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मौला मैंने अपनी औलाद को बसा दिया है तेरे हुर्मत वाले घर के करीब, ऐ परवरदिगार आलम तो इन्हें फलों का रिस्क देना, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर देना, और तू इन्हें नमाजी रखना. दुआ कबूल हो चुकी है. वो एक लकोदक से रहा जो पहले वीरान जंगल था, अब आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया है. अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब चलने फिरने के काबिल हो गए, एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं. नबी का ख्वाब शैतानी नहीं होता है, नबी का ख्वाब रहमानी होता है. ख्वाब देखा बेटे को ज़बह कर रहे हैं. सुबह बेदार हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी पेश की. फिर दूसरी शब सोए, दूसरी रात सोए, फिर वही ख्वाब, इब्राहिम अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर लो, सबसे कीमती चीज कुर्बान करो. फिर सुबह नमूदारी, फिर 200 ऊंटों को ज़बह किया. फिर तीसरी रात ख्वाब देखा कि इब्राहिम सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दो. सुबह बेदार हुए. कीमती चीज इंसान के आगे क्या है? माल या औलाद. इंसान सबसे ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, फिर अपने माल से मोहब्बत करता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी तलब कर रहा, मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया, रस्सी को लिया. लेने के बाद हजरत हाजरा से कहते हैं, मुझे और मेरे बेटे को एक दावत में जाना है, तुम इसे नहला धुला करके तैयार कर दो. हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को तैयार किया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जब लेकर के चले, शैतान दिल में उलझन मचने लगती है कि ऐसा ना हो इब्राहिम अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दे. दौड़ता हुआ शैतान हजरत हाजरा के पास गया. जाने के बाद कहता, हाजरा क्या तुम्हें मालूम है इब्राहिम इस्माइल को कहां लेके गए हैं? हजरत हाजरा ने कहा, वो अपने बेटे को दावत में लेके गए. कहा नहीं, वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं. हजरत हाजरा से शैतान ने कहा, वो कुर्बान करने के लिए ले गए हैं. हजरत हाजरा ने कहा, सुन ले, अगर रब मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी कबूल कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि एक इस्माइल क्या है, अगर परवरदिगार आलम मुझे जैसे हजारों इस्माइल भी अता कर दे तो मैं खुद अपने हाथों से रब के नाम पर कुर्बान करती हुई चली जाऊंगी. शैतान वहां से भी भागा. सोचने पर मजबूर हो गया, अब क्या किया जाए. भागता हुआ हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास पहुंचा. पहुंचने के बाद कहता, इस्माइल क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां लेके जा रहे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावत में. कहा नहीं, वो तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं. इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ऐसा भी कहीं देखा गया है कि एक बाप अपने बेटे को ज़बा कर दे? शैतान ने कहा नहीं, उन्हें ऐसा करने के लिए रब का हुक्म मिला है. इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा, सुन, अगर रब मेरी कुर्बानी कबूल कर ले तो मुझे वरगलाने वाला तो जरूर शैतान है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पड़ा, शैतान भाग जाता है. आपने फरमाया था, शैतान लईन, सुन ले, अगर रब मेरी कुर्बानी कबूल कर ले मैं तो यही कहूंगा, जान दीदी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ. शैतान वहां से भागा. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा. पहुंचने के बाद कहता, इब्राहिम क्या तुम्हें पता है तुम अपने बेटे इस्माइल को लेके कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बान करने के लिए. कहा, इब्राहिम कुर्बान करने जा रहे हो? कहा महज ख्वाब को देख करके सच साबित करना चाहते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां ली. लेने के बाद शैतान को मार देते हैं, शैतान भाग जाता है. अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान गाह के करीब ले गए. ले जाने के बाद कहते, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है? बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या मर्जी है? इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था, मेरे अब्बू जान सुनिए, जो रब ने आपको करने का हुक्म दिया बेशक आप कीजिए, बेशक आप मुझे साबिरों में से पाएंगे. कुरान कहता है, जब बाप ज़बा करने के लिए, बेटा ज़बा होने के लिए तैयार हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया.
लिटाने के बाद गले पर छुरी रखते हैं, आंखों पर पट्टी बांधते हैं, अपने बेटे इस्माइल के हाथों को बांध देते हैं, रस्सियों को बांध देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तक तारीख इस्लाम में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि एक मुकद्दस बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है और एक बेटा अपने रब की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी को रखा। छुरी चला रहे लेकिन छुरी चल नहीं रही। अल्लाह अकबर। छुरी चल नहीं रही। कई मर्तबा उस छुरी को चलाया लेकिन जब छुरी चली नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को जमीन पे मार दिया। पत्थर पड़ा था, पत्थर के टुकड़े हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया, लेने के बाद कहते, छुरी सुन, मेरे बेटे का गला रेशम से भी ज्यादा नाजुक है। तूने पत्थर जैसी सख्त चीज के 2 टुकड़े कर दिए और मेरे बेटे का गला इतना नाजुक है, इसे क्यों नहीं काट रही है? छुरी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुनो, तुम कहते हो काट, लेकिन रब कहता है छुरी मत काट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी आंखों पर पट्टी को बांधा, छुरी को लिया, फिर चलाने लगते हैं। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, ये मेरा खलील उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक बेटे की कुर्बानी नहीं दे देगा। जाओ, तुम ऐसा करो, जन्नत से जन्नती दुम्बा लेकर के आओ, इस्माइल को हटा दो, उनकी जगह पे जन्नती दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अमीन ने हुक्म खुदाबंदी सुना, जन्नत गए, जन्नती दुम्बा लिया, लेकर के आते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हटाया, उनके नीचे दुम्बा रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, दुम्बा ज़बा हो जाता है। आंखों से जब पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं? दुम्बा ज़बा पड़ा है, सामने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार, ये क्या मामला है? मैंने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी चलाई लेकिन दुम्बा ज़िबा है, मेरा बेटा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे खलील, जाओ, मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। मुझे तुम्हारी अदा इतनी पसंद आ गई है कि मैंने क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया के हर उस अफराद पर वाजिब कर दिया है जो साहिब निसाब हो, हर साल तुम्हारी सुन्नत पर अमल करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। इस्लाम तुमसे बेटे की कुर्बानी तलब नहीं कर रहा है। अगर तुम मालिक निसाब हो, साहिब इस्तात हो, तो हर साल तुम पर कुर्बानी करना वाजिब है। नबी फरमाते हैं, जो मालिक निसाब है, अगर वो कुर्बानी ना करे, उसे चाहिए वो ईदगाह के करीब ना आए।